Hey, hello everyone. So today we're going to talk about a very important topic that is Grignard reagent. And this video is on my dear students on your demand. Okay. So हम लोग start करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Grignard reagent की. Yes, Grignard reagent की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. So in the whole video we're going to talk about first thing. This is what is exactly Grignard reagent. And the second important thing, we have to understand that why it is so reactive. Why it is so reactive. So two things we are going to talk about here. So let's go further and try to understand in detail. Now, as I mentioned, when you talk about the Grignard, okay, Grignard reagent, जब भी आप सुनते हो, तभी आपने ये word भी सुना रहेगा. That's which word is that? Organometallic. Organometallic. Sir, what is this organometallic exactly mean? Organo means nothing but made of the carbon. Carbon skeleton to rahega na? Yes or no? And metallic means there is the presence of metal. So when you talk about the Grignard is the organometallic, that means Grignard is represented what? RMgX. अभी देखेंगे इसमें पार्ट कौन से R is representing the alkyl group. Yes or no, my dear friends? Yes. Mg is the metal, that is magnesium, and X is halide. Now tell me one thing, the organometallic means what? The bond between R and Mg, because R is alkyl, made of this carbon skeleton. So obviously क्या है? R. ये कौन सा ग्रुप है? I mean Mg, magnesium, it stands for magnesium, right? तो इन दोनों का जो बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे organometallic bond. And obviously Grignard को organometallic compound क्यों बोलेंगे? Because उसमें present यही है ना, RMgX. Yes or no? Yes. So we have studied that key organometallic bond is between present of R, that is alkyl, and the magnesium. And because of this presence of bond, हम इस compound में जो बोलेंगे उस compound को क्या बोलेंगे? Organometallic compound बोलेंगे, right? And the Grignard is one of the organometallic compound. So this point is very clear to you, right? Now, when I draw RMgX, what do you think? Magnesium is a metal. Metal has tendency to lose the electron most probably, right? X is a halide. Now tell me one thing in this case, what going to happen? Now, before we go ahead, what is the reactivity? Let's take some example. अगर मैं example ले रहा हूँ यहाँ पे CH3Mg, let's take halide I. So ये क्या हो गया? What is this? बोलो बच्चों लोग, ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, CH3MgNI. इसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, राइट? एज पर द नोमेनक्लेचर R अल्काइल होता है, मैग्नीशियम हम लोग मैग्नीशियम ही लिखेंगे इसको, और ये हालाइड, राइट माय डियर फ्रेंड्स? सो दैट्स अ मिथाइल मैग्नीशियम. चलो और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं हम लोग C2H5. क्या बन गया? ये इथाइल मैग्नीशियम, और हालाइड की जगह पे क्लोरीन लेते हैं एग्जांपल. तो इसका क्या नाम रहेगा? यस, इथाइल मैग्नीशियम, बोलो यस, क्लोराइड. इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड will be there. Sir, I have a question. What's that question? ये R जो ग्रुप है वो AR ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है. यस. तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल. अगर ये जो रिंग बना है यहाँ पे, लेट मी मेक इट नाइसली. सो अगर मैं बोल रहा हूँ ARMgX भी हो सकता है. यस. तो लेट्स टेक एग्जांपल बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन अटैच है यहाँ पे Mg से एंड यहाँ पे X. बट जब भी बेंजीन अटैच होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिनाइल. ये याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट. तो ये क्या बनेगा? सो अगर मैं इस X की जगह पे Cl लिखूं तो क्या बनेगा? ये इस कंपाउंड का नाम क्या बोलेगा बच्चों? दिस विल बी फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. यस, फिनाइल मैग्नीशियम chloride. Yes or no? Yes. So we have understood nomenclature as well. Now let's move to the very interesting part. Why it is so reactive? Why it is so reactive? Who is very reactive? Grignard, right? So Grignard का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RMgX. Now हमें पता चला कि ये जो दोनों के बीच में R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे organometallic bond. करेक्ट? और जो Mg और X के बीच में है
वो कौन सा बॉन्ड है? अभी मेटल एंड हैलाइड इज देयर राइट, सो वो भी बॉन्ड है। तो ये जो ऑर्गेनिक मेटेलिक जो बॉन्ड होता है वो मोस्टली होता है कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और जो MgX होता है, ये जो बॉन्ड होता है होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ओके, now tell me one thing, if I take example CH3 is attached to the Mg and Pr is there. Now tell me one thing, मिथाइल और मैग्नीशियम में कौन सा बॉन्ड रहेगा? ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड रहेगा, yes or no? Okay, now tell me one thing, in case of magnesium, now tell me one thing, magnesium and halide will be reacting, right? Yes or no? They will be reacting, but यहाँ पे because of the magnesium, that is a metal, and metal has a dominating power, that is what? A very dominating power to donate the electron. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? CH3 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। Okay, so let's talk about in here CH3 MgPr। जो मैग्नीशियम है अपनी इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेगा, किसके साथ भेजेगा, किसके इधर भेजेगा? CH3 के पास। तो CH3 तो अरे बाप रे, CH3 तो डोनेटिंग होता है ग्रुप, हमें पता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक, राइट? बिकॉज ऑफ दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक, राइट? सो मैग्नीशियम की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? CH3 के ऊपर। तो CH3 के ऊपर एक चार्ज आएगा, दैट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सर आपने पार्शियल बोला है, नहीं, लेकिन अगर पार्शियल होने के बावजूद भी ये चार्ज लार्ज होता है, दैट्स व्हाई अगर रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम इसको भी बैलेंस कर लेता, राइट? मैग्नीशियम इसको भी बैलेंस कर लेता है बिकॉज ये माइनस में रहेगा, राइट? बिकॉज वी नो दैट हाइड्राइड की वैलेंस कितनी है? -1। तो ये तो बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम इनका बॉन्ड तो मस्त है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा CH3 के ऊपर, देखो कौन सा चार्ज आ गया है यहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइनस चार्ज आ रहा है। अरे मोस्टली तो CH3 के ऊपर चार्ज नहीं आता। तो कैन यू सी दैट दिस इज अ वेरी अनस्टेबल वन, है ना? अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली क्या होगा? हाईली रिएक्टिव रहेगा। ओके, सो इसको समझने के लिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल रिगार्डिंग द सेम। सो अगर मैं बात करूंगा CH3, ओके, CH3 MgPr, ये तो हमने इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, हमने इसकी बारे में बात कर दी है। अगर मुझे ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर करना, ओके, ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल CH3OH, कौन सा अल्कोहल है ये? मिथाइल अल्कोहल। क्या लिया मैंने? मिथाइल अल्कोहल ले लिया यहाँ, ओके। और मैं ऐड किया यहाँ पे CH3MgPr, दिस आई एम टेकिंग एग्जांपल, ओके, कि ये कैसे रिएक्टिव ज्यादा होगा यहाँ पे। तो नाउ टेल मी बच्चा लोग, क्या होगा यहाँ पे? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली। तो CH3 किसके ऊपर अटैच करेगा? इसके ऊपर अटैच करेगा, उस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? बोलो। CH3 जो है वो क्या बनेगा? ये तो OH आपका है यहाँ पे, करेक्ट? दैट OH इज देयर इटसेल्फ। तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा? OH तो है यहाँ पे, CH3 अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो CH3 विल बी अटैच विद HH। देखो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है क्या? 1, दिस इज 2, 3, राइट? और एक होना चाहिए ना वहाँ पे, this will be a 4, 1 will be there। so इसको हम लोग लिखते हैं अच्छे से यहाँ पे, ओके, ये अटैच हो गया। लेकिन इस OH की जगह पे क्या अटैच होगा? अभी इस OH की जगह पे, यस, इट विल बी अटैचिंग व्हाट? यस, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, MgPr will be attaching, and this is called a, इसको क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग? Yes, complex। तो टूटेगा, राइट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ओके। तो उसको हम लोग करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑब्वियसली ये OH जाएगा इसके पास और ये H जाएगा इसके पास। सो व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस केस? क्या बन गया आपका? CH3 CH2, क्या बना गया आपका? टेल मी वन थिंग, दिस OH देयर ना, OH हैज बीन रिटेन्ड, राइट? तो OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये CH2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस केस? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू aldehyde, CH3 C डबल बॉन्ड एंड H विल बी देयर। देखो एक कार्बन ऐड हो गया ना यहाँ पे, ये मेन कार्बन था आपका, ये कार्बन क्या हो गया? ऐड हो गया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ Grignard reagent, एंड फ्रॉम द अल्कोहल आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? अल्डिहाइड। क्या बन गया यहाँ पे आपका? अल्डिहाइड बन गया। विच अल्डिहाइड? ये मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन था यहाँ पे,
कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन हो गए। कौन सा एल्डिहाइड बन गया, इथाइल एल्डिहाइड। ओके, और इसको सिंपली एसिटल्डिहाइड भी बोलते। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई इट इज सो रिएक्टिव, बिकॉज CH3 ग्रुप क्या हो जाता है, टूट जाता है। सो लेट्स कंपेयर दिस विद द थिंग। अगर मैं यहाँ पे लूंगा CH3 हैविंग द नेगेटिव चार्ज, देन उसके पीरियड में लेंगे NH2 हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड OH नेगेटिव। हमें पता है NH2 एंड OH इनमें पॉकेट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो OH एंड NH2 के बारे में अगर बात करेंगे तो वी नो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इमेजिन CH3 के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अनस्टेबल अनस्टेबल कौन होगा, CH3 होगा ना। तो हु इज सबका डैडी कौन है यहाँ पे, CH3 वेरी रिएक्टिव इन दिस केस। और कौन रिएक्टिव है फिर, CH3 इज रिएक्टिव। ओके, नाउ ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा है, बिकॉज ये लेस स्टेबल, क्या है, ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल होने के बाद उसके पास नो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन हैंडल नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन हैंडल नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, रिएक्शन ज्यादा देगा, राइट, यस और नो। ये R जो अल्काइल ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये R इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, राइट, यस और नो, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये एक्ट लाइक अ बेस कर सकता है, या फिर वो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर जा सकता है। Okay, so we'll see that in the next part exactly how air act like a basic reaction, acido-base reaction रहेगी, और एक न्यूक्लियोफिल। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। So right now you know that this is very unstable. That's why what is the question we ask you all? That Grignard reagent why so is reactive, because of presence of CH3 and Mg का जो bond होता है वो फटाक से टूट जाता है, because ये unstable होता है because of partial negative charge. So I hope your all question got answers and you got everything to know, right? तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन। अभी इसमें क्या देखा हमने, अल्कोहल को रिएक्ट करवाया, राइट, वो जस्ट एग्जांपल था, हम लोग डिटेल में उसकी सीरीज में बनाने वाला हूं, यू विल अंडरस्टैंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो, ओके। चलो बच्चे लोग, बाय बाय, टेक केयर।